اردو کی جو اسٹرینتھ ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے, اردو نہ صرف ایک علمی زبان ہے بلکہ ایک ادبی اور ایک میں کہوں اگر اس کو شاعری کی زبان ہے, نغمے کی زبان ہے تو بے جانا ہوگا. آج کی جو محفل ہے وہ یقیناً شعری نشست ہے, اور کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, صرف 3 اشعار پڑھ کے اور میں آپ کی خدمت میں, اور پھر 3 اشعار نہیں بلکہ 2 اشعار اور 1 پڑھ کے اور میں پھر اس بات کو بس ختم کروں گا, اور پھر میں دعوت دوں گا کہ محبوب علی خان صاحب جو آج کے مشاعرے کے ناظم ہیں وہ تشریف لائیں اور پھر آگے کی کارروائی چلائیں. اور دیکھیے کلیم عاجز کہتے ہیں, اب یہ سب اردو زبان کے لیے آپ سمجھ لیجیے کہ اردو زبان کی تعریف ہو رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس قدر سوز کہاں اور کسی ساز میں ہے, کون یہ نغمہ سرا میر کے انداز میں ہے. اور پھر یہ ہے کہ آنکھیں, یہ جوش نے کہا, آنکھیں تیری بیت السلم, مکھڑا تیرا نور حرم, تیرا ہر ایک نقش قدم نسری بنقشہ نسترن, اس مطلع انوار سے, اس نور گوہر بار سے, اس مصر کے بازار سے برخیز برقع برفگن, اے جان من جانان من جان من. اور پھر اس کے بعد جو ہے جگر کا بھی شعر سن لیجئے, اور اس کے ساتھ ہی پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ شاعر فطرت ہوں, جب بھی فکر فرماتا ہوں میں, روح بن کے ذرے ذرے میں سما جاتا ہوں. خواتین حضرات, آپ کی تعلیموں میں دعوت دے رہا ہوں جناب آج کے ناظم محبوب علی خان صاحب کو بھی تشریف لائیں اور یہاں سے مشاعرے کی کارروائی سنیں. السلام علیکم حضرات. اتنے عمدہ پروگرام کے انعقاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ امین بھائی کے لیے بہت ساری تعلیمیں ہوں گی. اور آج کی مشاعرے کی صدارت ہمارے مہمان خصوصی اور آج کے صاحب شام جناب اشفاق حسین صاحب فرما رہے ہیں. میں سے ملتمس ہوں اسے قبول کیجیے. امت کو پھر سے یارب احسان دی, امت کو پھر سے یارب احساس دین دے دے, سب کے دلوں کے مالک دل کا یقین دے دے, راحت ہو آتشی ہو الفت ہو بھائی چارہ, اے آسمان والے ایسی زمین دے دے. حضرات, شہر شکاگو جو ہے اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ یہاں پر ادب سے محبت کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور اب ایک شعر ہے امیر بنائی کا ہے کہ شاعر کو مست کرتی ہے تعریف شعر امیر, 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں. آج آپ تمام لوگوں کی سماعتوں کا بھی امتحان ہے کہ آپ کس طرح یہ سنتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے چند اشعار سے اس محفل آغاز کرنا چاہوں گا. سرے منظر چھٹا گرد و غبار آہستہ آہستہ, سرے منظر چھٹا گرد و غبار آہستہ آہستہ, نظر آنے لگا پھر شہسوار آہستہ آہستہ. اور خیال دوست تھا اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے, خیال دوست تھا اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے, اتر جاتا ہے یادوں کا خمار آہستہ آہستہ. اور اگرچہ میں کسی بھی درجہ بندی کا نہیں قائل, اگرچہ میں کسی بھی درجہ بندی کا نہیں قائل, مگر ہونے لگا ہے اعتبار. اگرچہ میں کسی بھی درجہ بندی کا نہیں قائل, مگر ہونے لگا ہے اعتبار آہستہ آہستہ. اور یہ شعر ہو گیا ہے تو پڑھ رہا ہوں, اس کو ذرا سیریس نہیں لینا. یہ بڑی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ شاعروں کی فوج, بڑی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ شاعروں کی بھیڑ, شاعروں کی بھیڑ, اور گرا جاتا ہے شعروں کا معیار. بڑی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ شاعروں کی بھیڑ, گرا جاتا ہے شعروں کا معیار آہستہ آہستہ. آپ کی اجازت سے یہ بھی تازہ ہے کہ کسی فریب کے زیر اثر نکل آئے, کسی فریب کے زیر اثر نکل آئے, ذرا سی دیر میں چوٹی کے پر.
किसी फरेब के जेरे असर निकल आए, जरा सी देर में चूटी के पर निकल आए, और सरों की फसल है तैयार फिर से कटने को, सरों की फसल है तैयार फिर से कटने को, उसे एक सर के एवज कितने सर निकल आए। और मैं जिसको अपनी विरासत समझ के बैठा था, ये शेर देखिए, मैं जिसको अपनी विरासत समझ के बैठा था, उसी जमीन से सांपों के घर मैं जिसको अपनी विरासत समझ के बैठा था, उसी जमीन से सांपों के घर निकल आए। और अजीब रंग था जख्मों की तर्जमानी का, बहा जो खून तो उसमें गोहर निकल आया। और बस एक ये शेर देखिए जिसके लिए मैंने गजल लिखी है, मकता है कि बस एक बार मुझे चीखना पड़ा महबूब, बस एक बार मुझे चीखना पड़ा महबूब, जो बेपनाह थे अंदर के डर निकल आए। बस एक बार मुझे चीखना पड़ा महबूब, जो बेपनाह थे अंदर के डर निकल आए। शायर को दावत देने जा रहा हूँ, वो हमारी उर्दू इंस्टीट्यूट के महफिल में पहली दफ़ा शिरकत कर रहे हैं, इल्मी खानवाते से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद मरहूम सादिक नकवी बहुत मोतबर शायर थे, शिकागो में उनका एक मुकाम था। हाँ, और उनके साहबजादे जनाब रियाज नकवी से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने अशार पेश करें यहाँ पर। यहाँ जो है हमारे शिकागो में शायरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और मगर ये कि हम कोशिश करते हैं कि इनमें से उर्दू इंस्टीट्यूट ख़ास तौर पे इस बात की कोशिश करता है कि नुमाइंदा शुरा को दावत दी जाए, वरना ये होता है कि लोग दो दो तीन तीन शेर सुनाते हैं और चले जाते हैं। बल्कि किसी शायर का एक शेर किया जा रहा है कि मुख्तसर पढ़ने की क्यों शायर से फरमाइश रहे, उतने ही शायर बुलाए जितनी गुंजाइश करता है। और जनाब मुख्तसर पढ़ने की क्यों शायर से फरमाइश रहे, उतने ही शायर बुलाए जितनी गुंजाइश रहे। तो हम यही करते हैं की गुंजाइश है। बहुत गजल से पहले एक बतलाव तीन शेर समाज फरमाए कि फासले दरमियां क्यों रहे, फासले दरमियां क्यों रहे, हम यहाँ तुम वहाँ क्यों रहे, हम यहाँ तुम वहाँ क्यों रहे, और जिनको चाहा था वो मिल गए, जिनको चाहा था वो मिल गए, हाजते दो जहां क्यों रहे, हाजते दो जहां क्यों रहे। और जुल्म जालिम का बढ़ता रहा, जुल्म जालिम का बढ़ता रहा, फिर भी हम बेज़बां क्यों रहे, बेज़बां क्यों रहे, बेज़बां क्यों रहे। जुल्म जालिम का बढ़ता रहा, फिर भी हम बेज़बां क्यों रहे। और अपनी हस्ती हवा की सी थी, अपनी हस्ती हवा की सी थी, हम न जाने कहाँ क्यों रहे, हम न जाने कहाँ क्यों रहे। और गजल के चंद अशआर समाअत फरमाए कि एक तेरे नाम को ही सजाने में रह गया, एक तेरे नाम को ही सजाने में रह गया, मैं रोज रोज खुद को मिटाने में रह गया, मैं रोज रोज खुद को मिटाने में रह गया। और रहजन तो सारे आ गए मंजिल पे और मैं, रहजन तो सारे आ गए मंजिल पे और मैं, कांटों को रास्ते से हटाने में हटाने में रह गया। और खुशबू कली भी फूल भी बादे सबा भी थी, खुशबू कली भी फूल भी बादे सबा भी थी, और बागबान कांटे छुपाने में रह गया, बागबान कांटे छुपाने में रह गया। और शेर देखें कि सर काटने को जिसके हुए तेज असलहे,
सर काटने को जिसके हुए तेज असलहे, वो फिर भी उम्मती को बचाने में रह गया, वो फिर भी उम्मती को बचाने में रह गया। और आसान तोड़ना हुआ रिश्तों का आजकल, आसान तोड़ना हुआ रिश्तों का आजकल, जो था बड़ा दिलों को मिलाने में रह गया, जो था बड़ा दिलों को मिलाने में रह गया। और इज्जत मिले रकीबों को आशिक जलील हो, इज्जत मिले रकीबों को आशिक जलील हो, जिंदा में कैसे ऐसे जमाने में रह गया, ऐसे जमाने में रह गया। आखिरी शेर जो है बहुत लोगों की अक्कासी होगी ये शायद, कि जिंदा में कैसे ऐसे जमाने में रह गया। और जाना तो था मुझे भी बहुत दूर तक, मगर जाना तो था मुझे भी बहुत दूर तक, मगर बच्चों का अपनी बोझ उठाने में रह गया, बच्चों का अपनी बोझ उठाने में रह गया। और आखिरी में मरता कि हम जिसको ढूंढते रहे ताउम्र रियाज, छुपकर वो मेरे दिल के खजाने में रह गया, छुपकर वो मेरे दिल के खजाने में रह गया। आपने भी पहली जो गज़ल पढ़ी उससे मुझे अपने अब्बा का एक शेर याद आ गया कि कैसे शामों सहर हो गए, हम इधर तुम उधर हो गए, हम समझते थे बेबालों पर हम ना होंगे मगर हो गए। अब मैं जिस नौजवान शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, आप यकीन जानिए कि उसको सुन के ऐसा लगता है कि उर्दू का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, बहुत ताबनाक है। और वो फिज़िक्स में पीएचडी कर रहे हैं और उर्दूज़ में भी पीएचडी कर चुके हैं। और बल्कि उनको इस शेर के साथ बिलाल आलम को मैं दावत कलाम दूंगा, अहमद मुश्ताक के नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। साहिब सदर की इजाज़त से कुछ अशार। जिस्म मट्टी है मेरा मेरी नुमो मट्टी है, जिस्म मट्टी है मेरा मेरी नुमो मट्टी है, नमे मिश्का से जो टपका वो लहू मट्टी है। तुझको है शौके मसीहाई मगर ये तो बता, क्या तेरे पास कोई तारे रुफू मट्टी है? तारे रुफू मट्टी है। मजीद अमजद की एक मशहूर ज़मीन में दो अशार हैं कि खुरोशे सीनाए सैयारगां तेरी आवाज़, खुरोशे सीनाए सैयारगां तेरी आवाज़, निगारशे दिलो दुनिया की हाउ तेरा गम, तेरे ख्याल की हिद्दत उजाड़ने के लिए, तेरे ख्याल की हिद्दत उजाड़ने के लिए, कभी कभी तेरी आंखें कभू कभू तेरा गम। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल सुना के ज़्यादा चाहता हूँ कि उम्र भर हाथ ना इमरोज न फरदा आया, उम्र भर हाथ ना इमरोज न फरदा आया, कितनी उजलत में तेरे शहर से चलता आया, रात एक नींद का झोंका मेरे बिस्तर से परे, इतनी वहशत थी कि ख्वाबों से उलझता आया, आसमानों पे कदम रख नहीं पाया लेकिन लिल्लाहिल हम्द के मिट्टी पे तो चलना आया, कायनातें मेरी तफहीम कहाँ कर पाएं, कायनातें मेरी तफहीम कहाँ कर पाएं, मैं वो यकता हूँ कि यज़दां तो खटकता आया। ऐ मेरे हिजर ज़दा रात बुनी जब तूने, मैंने दिल दान किया खुद में सुलगता आया, तेरे इस दौरे पुराशोब में अक्सर ये हुआ, तेरे इस दौरे पुराशोब में अक्सर ये हुआ,
अश्क आंखों से नहीं दिल से टपकता आया। उम्र भर उड़ती रही गर्दे तहय्युर मुझ में, उम्र भर उड़ती रही गर्दे तहय्युर मुझ में, उम्र भर अपनी ही हस्ती से सिरकता आया। तारे खुद सोजिए हिजरा में लिपटता था वजूद, सो कभी रंग बदलता कभी जलता आया। एक दरवेश सरे दश्ते जुनून का बासी, बरसरे आवे ज़मां दर्द छिड़कता आया। जान ऐसे तो लबों तक नहीं आई मेरी, जान ऐसे तो लबों तक नहीं आई मेरी, वक्ते मालूम के सीने में धड़कता आया। तूने एक बार किया था मेरे सीने में वरूद, तब से जो लफ्ज भी सोचा वो महकता आया। आखिरी शेर है कि मैं तो मट्टी था मगर तेरी रफाकत के तुफैल, मैं तो मट्टी था मगर तेरी रफाकत के तुफैल, बात भी खूब कही रंग भी चौखा आया। मैं अपने शायर को दावत कलाम दूंगा, उनसे गुजारिश है काशिफ हैदर, जिन्हें मैं अपने शहर शिकागो के पाते का झूमर कहता हूँ, उनके लिए दो शेर आपकी इस्तकबाल के लिए कि इश्क से अक्ल का फुकदान खरीदा हमने, अजमल सराज, इश्क से अक्ल का फुकदान खरीदा हमने, और वो भी अल-ऐलान खरीदा हमने, फील भरने के लिए जेब में पैसे भी न थे, जिन दिनों मीर का दीवान खरीदा हमने। मैं दो चार शेर बस पेश करता हूँ कि उसने ऐसा किया नजरों से इशारा खामोश, उसने ऐसा किया नजरों से इशारा खामोश, देखते देखते आलम हुआ सारा खामोश। उसने ऐसा किया नजरों से इशारा खामोश, देखते देखते आलम हुआ सारा खामोश। और शोर इतना है कि दिल डूब रहा है मेरा, शोर इतना है कि दिल डूब रहा है मेरा, चीख कर बोल दूं दुनिया से खुदारा खामोश, चीख कर बोल दूं दुनिया से खुदारा खामोश। और ये शेर देखें कि ऐसा लगता है कोई डूब रहा हो जैसे, ऐसा लगता है कोई डूब रहा हो जैसे, कल्ब दरिया में बहुत शोर किनारा खामोश। ऐसा लगता है कोई डूब रहा हो जैसे, कल्ब दरिया में बहुत शोर किनारा खामोश, देखते देखते आलम हुआ सारा खामोश। एक दो तीन शेर और पेश करता हूँ। खबर किसी का कोई पता नहीं है, खबर किसी का कोई पता नहीं है, तो क्या यहाँ पे कोई भी मेरे सिवा नहीं है। खबर किसी का कोई पता नहीं है, तो क्या यहाँ पे कोई भी मेरे सिवा नहीं है। ये किसका सर है जो नेज़े से दे रहा है बयान, ये किसका सर है जो नेज़े से दे रहा है बयान, ये कौन कत्ल हुआ है मगर मरा नहीं है। किसका सर है जो नेज़े से दे रहा है बयान, ये कौन कत्ल हुआ है मगर मरा नहीं है। शोभे शेर देखें, खबर है आम मैं उस हादसे में मारा गया, खबर है आम मैं उस हादसे में मारा गया, वो हादसा जो अभी तक कहीं हुआ नहीं है। खबर है आम मैं उस हादसे में मारा गया, खबर है आम मैं उस हादसे में मारा गया, वो हादसा जो अभी तक कहीं हुआ नहीं है। खबर किसी का कोई पता नहीं है, तो क्या यहाँ पे कोई भी मेरे सिवा नहीं है। बस एक गजल के दो चार शेर पेश करके मैं इजाजत चाहता हूँ। चलें ये पढ़ देता हूँ। यही बस एक इरादा सफर में रखा गया, यही बस एक इरादा सफर में रखा गया, हमें बहुत ही ज्यादा सफर में रखा गया। यही बस एक इरादा सफर में रखा गया,
हमें बहुत ही ज्यादा सफर में रखा गया। वो जिसने दी थी खबर कारवां को मंजिल की, वो जिसने दी थी खबर कारवां को मंजिल की, तो क्यों उसी को प्यादा सफर में रखा गया। वो जिसने दी थी खबर कारवां को मंजिल की, तो क्यों उसी को प्यादा सफर में रखा गया। और ये हिजरत करने वालों का एक दुख ये भी है कि कहीं भी जाएं मगर घर न लौट कर आए, कहीं भी जाएं मगर घर न लौट कर आए। हमारे साथ ये वादा सफर में रखा गया, कहीं भी जाएं मगर घर न लौट कर आए। हमारे साथ ये वादा सफर में रखा गया। हर एक कदम पे लुटाते रहे हैं ज़ादे सफर, हर एक कदम पे लुटाते रहे हैं ज़ादे सफर। दिलों को कितना कुशादा सफर में रखा गया, दिलों को कितना कुशादा सफर में रखा गया। एक तन्वी का शेर के मिलेगी राह में करबो बलाए असर हमें, मिलेगी राह में करबो बलाए असर हमें। फटा पुराना लिबादा सफर में रखा गया, यही बस एक इरादा सफर में रखा गया। हमें बहुत ही ज्यादा सफर में रखा गया। बहुत शुक्रिया। रफ़ी वक्त नफीस, इसमें बामुसम्मा है, बहुत नफीस और उम्दा शायर है। बल्कि एक मिसरा हो गया है, हो सकता है हाल में मौजूद कोई शायर उसको मुकम्मल कर दे। नफीस वक्त किसी से खफा नहीं होता। नफीस वक्त साहब से, रफ़ी वक्त नफीस साहब से जो वो तशरीफ लाए। अब एक ऐसे शायर के बाद हमें बुलाया आपने जो कि महफिल लूट के चले गए, इसीलिए तो ज्यादा सफर में रखा। एक ये बात जरा सी तो बताता जाता, एक ये बात जरा सी तो बताता जाता, मुझको खुद मुझसे भला कैसे मिलाया जाता, मुझको खुद मुझसे भला कैसे मिलाया जाता। वो चलो छोड़ गया फिर भी भरी दुनिया में, वो चलो छोड़ गया फिर भी भरी दुनिया में, कोई एक शख्स तो होता कभी आता जाता। वो चलो छोड़ गया फिर भी भरी दुनिया में, कोई एक शख्स तो होता कभी आता जाता। और तुझको मुझसे जो गिले शिकवे रहे इतना बता, तुझको मुझसे जो गिले शिकवे रहे इतना बता, जिंदगी और तुझे कैसे गुजारा जाता। शुक्रिया। तुझको मुझसे जो गिले शिकवे रहे इतना बता, जिंदगी और तुझे कैसे गुजारा जाता। चलिए वो एक शेर ढूंढ रहे थे हम, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, तो गजल की तरह ना तो गम का ही कोई गम रहा, ना खुशी की कोई खुशी रही, ना तो गम का ही कोई गम रहा, ना खुशी की कोई खुशी रही। मेरा दिल ही मेरा न दिल रहा, तेरी याद उसमें बसी रही। मेरा दिल ही मेरा न दिल रहा, तेरी याद उसमें बसी रही। मेरी जिंदगी के ये मरहले, कभी कुर्बतें कभी फासले, मेरी जिंदगी के ये मरहले, कभी कुर्बतें कभी फासले, कभी हर तरफ सफ़े आ गई, कभी बात दिल में रखी नहीं। मेरी हिजरतें ये मसाफतें, ना सराय हैं ना पड़ाव हैं, ना तो हम सफर नहीं हम नवा, मेरी जात है जो मिली रही। ना तो हम सफर नहीं हम नवा, मेरी जात है जो मिली रही। कभी हंस लिए कभी रो लिए, भरी भीड़ में रहे तखलिए। शुक्रिया। कभी हंस लिए
کبھی رو لیے بڑی ہاں بھری بھیڑ میں رہ تک لیے، یوں ہی زندگی تجھے جی لیے، کہیں تو یقینی کمی رہی۔ اور یہ دیکھیے کہ میں جو آ گیا، میں چلا گیا، میں کہاں گیا کسے کیا پتا، میں جو آ گیا، میں چلا گیا، میں کہاں گیا کسے کیا پتا، میرے آنے جانے سے کیا ہوا، تیری بزم جو تھی وہی رہی، میرے آنے جانے سے کیا ہوا، تیری بزم جو تھی وہی رہی، میرے وہ بشیر و نذیر ہیں، میرے وہ شفیع و حضور ہیں، میرے وہ بشیر و نذیر ہیں، میرے وہ شفیع و حضور ہیں، میرے بے حساب قصور ہیں، مگر آس ان سے بندھی رہی۔ مقدار ہیں، ارے کیا بتائیں نفیس نے، کسے کیا دیا اسے کیا ملا، ارے کیا بتائیں نفیس نے، کسے کیا دیا اسے کیا ملا، رہی عمر وہ تو گزر گئی، یہ بری رہی یا بھلی رہی، رہی عمر وہ تو گزر گئی، یہ بھلی رہی یا بری رہی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ زمانہ اب بھی نہیں جس کی سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں۔ میری مراد سید سالم صاحب سے ہے، کچھ ریسنٹلی وہ ہمارے محفلوں کو جوائن کرنا شروع کیا انہوں نے، اور ماشاء اللہ کا شعر کہتے ہیں، اتنا قریب تھا کہ دکھائی نہیں دیا، ایک فاصلہ بھی چاہیے ہم کو نظر کے ساتھ، فاصلہ بھی چاہیے ہم کو نظر کے ساتھ، اور منظر بدل گیا ہے بدلنے سے زاویہ، منظر بدل گیا ہے بدلنے سے زاویہ، ادراک مختلف ہے بدلتی نظر کے ساتھ، ادراک مختلف ہے بدلتی نظر کے ساتھ، اور خود کو بھی اعتماد کے قابل سمجھ کے چل، خود کو بھی اعتماد کے قابل سمجھ کے چل، حاجت ہے کیا چلے تو ہمیشہ خضر کے ساتھ، حاجت ہے کیا چلے تو ہمیشہ خضر کے ساتھ، اور کرنا ہے اس کو یاد تو کر انہماک سے، کرنا ہے اس کو یاد تو کر انہماک سے، یہ کام وہ نہیں کہ ہو کارے دیگر کے ساتھ، یہ کام وہ نہیں کہ ہو کارے دیگر کے ساتھ، اور یوں در بدر کی خاک سے ملتا نہیں ہے کچھ، یوں در بدر کی خاک سے ملتا نہیں ہے کچھ، بہتر تو ہے کہ بیٹھیے اہل نظر کے ساتھ، بہتر تو ہے کہ بیٹھیے اہل نظر کے ساتھ۔ اور آخری شرح کے ہجرت بھی کی تو خود سے میں باہر نہ آ سکا، ہجرت بھی کی تو خود سے میں باہر نہ آ سکا، رہتا ہوں آج بھی میں وہیں اپنے گھر کے ساتھ، ہجرت بھی کی تو خود سے میں باہر نہ آ سکا، رہتا ہوں آج بھی میں وہیں اپنے گھر کے ساتھ۔ اور نقطہ لکھ لیجئے کہ اب اس سفر میں حوصلہ ٹوٹا ہوا ہے سید، اب اس سفر میں حوصلہ ٹوٹا ہوا ہے سید، کافی ہے لوٹ آئیں جو گردے سفر کے ساتھ، کافی ہے لوٹ آئیں جو گردے سفر کے ساتھ۔ اب ایک گھسا پھٹا جملہ ہے، مگر میرا علم جو ہے ساتھ نہیں دے رہا، میری مطلب
कामयाबी समझिए, समझिए, कमाल समझिए, वो है कि अब आप सदर महफिल है और मेरा आपका तारुफ कराना ऐसा ही है जैसे सूरज को चला दिखाना। तो मैं आपसे बस मुल्तमिस हूँ, आप हैं और सामने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी शाम रही और खाली दूसरे दौर से ज़रा कमी पूरी होगी, वरना ये होता है कि मैं ही बोलता रहता और वो बोलता बोलता चला जाता है। चलो नज़मों से शुरू करते हैं। एक नज़्म है, उसका उन्होंने ज़िंदगी के अशरे चार। ज़िंदगी के अशरे चार, तीन में गंवा बैठा। ज़िंदगी के अशरे चार, तीन में गंवा बैठा। एक इस तफक्कुर में जिंदगी का मतलब क्या, कायनात के अंदर फर्क की हकीकत क्या, नफरतों की मंडी में कीमत मोहब्बत क्या। दूसरे में ये सोचा, फूल मेरे आंगन में रोज क्यों नहीं खिलते, जंग काटने वाले अमन क्यों नहीं मिलते, क्यों हवाओं के नाखून जख्मे गुल खुरचते हैं, नम हवाओं के झोंके आग क्यों उगलते हैं। और तीसरा अशरा बेयकीनियों का था, जिसमें मैंने ये सोचा, जिसमें मैंने ये जाना, यानी मैंने जो सोचा, यानी मैंने जो जाना, सिर्फ एक झोंका था रेशमी हवाओं का। क्यों ना चौथे अशरे को इस तरह गुजारे हम, जिंदगी की जुल्फों को प्यार से संवारे हम, तुम सदाएं दो हमको और तुम्हें पुकारे हम, क्यों ना चौथे अशरे को इस तरह गुजारे। इसका मोहब्बत और ज़रूरत, मोहब्बत और ज़रूरत। मैं अपने दिल की सब गहराइयों के साथ, सब सच्चाइयों के साथ ये इकरार करता हूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपने दिल की सब सच्चाइयों के साथ, सब गहराइयों के साथ ये इकरार करता हूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ। मगर जो कह रहा हूँ मैं, बहुत मुमकिन है पूरे सच की आंच इससे न गुजरी हो। मगर जो कह रहा हूँ मैं, बहुत मुमकिन है पूरे सच की आंच इससे न गुजरी हो। मेरे होंठों पे जो लफ्ज़ मोहब्बत है, बहुत मुमकिन है वो मेरी ज़रूरत हो। मेरे होंठों पे जो लफ्ज़ मोहब्बत है, बहुत मुमकिन है वो मेरी ज़रूरत है। मोहब्बत और ज़रूरत अपनी अपनी सरहदों में कैद हैं, दोनों की दुनियाएं अलग हैं। मैं एक दुनिया में हूँ और दूसरी दुनिया के ख्वाब आते हैं आँखों में। अधूरी चाहतें मेरी, मेरे जज्बे अधूरे हैं। मोहब्बत के मेरे होठों पे अफसाने अधूरे हैं। अधूरेपन की एक दुनिया मेरे चारों तरफ है। फिर भी अपने दिल की सब गहराइयों के साथ, सब सच्चाइयों के साथ ये इकरार करता हूँ कि तुमसे प्यार। फिर भी अपने दिल की सब गहराइयों के साथ, सब सच्चाइयों के साथ बना में लबशीरी दहना हम। एक शाम बना में लबशीरी दहना हम, चुपके से उतर जाएंगे सागर में किसी। एक शाम बना में लबशीरी दहना हम, चुपके से उतर जाएंगे सागर में किसी। और शायद किसी एक मिसरे खुश रंग की सूरत, शायद किसी एक मिसरे खुश रंग की सूरत, हम भी नजर आ जाएंगे मंजर में किसी। शायद किसी एक मिसरे खुश रंग की सूरत, हम भी नजर आ जाएंगे मंजर में किसी के। अब 3 मिनट और 10 सेकंड है तो मैं काफी
देखूं जो आसमां से तो इतनी बड़ी जमीन, देखूं जो आसमां से तो इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी जमीन पे छोटा सा एक शहर, छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल, सड़कों के जाल में छुपी वीरान सी गली, वीरान गली के मोड़ पे तन्हा सा एक शजर, तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची जमीन का सहन, कच्ची जमीन के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल, उस दिल की वसअतों में कहीं खो गया हूँ मैं, यूं है कि इस जमीन से बड़ा हो गया।